Welcome dear learners. Today we are going to discuss about introduction to agar gel electrophoresis. That is the last topic included in your syllabus. So what do you mean by electrophoresis? Electrophoresis, this picture you can see here that the process of electrophoresis, here is a conical flask of agar-oats, then there is a electrophoretic chamber. This is micropipette and this is the gel which visualize after the running of particular matter molecules like DNA or the another proteins. So purpose of this agar-oats gel electrophoresis is to understand the principle of gel electrophoresis and to become familiar with the part of electrophoresis setup. So what we are going to discuss in this video lecture is, so what do you mean by gel electrophoresis? What are the principles? Also, we are going to familiar with the electrophoretic setup and what are different applications of electrophoresis. So what do you mean by electrophoresis? Electrophoresis is the laboratory technique for separating molecules on the basis of their charges or on the basis of their molecular weight or on the basis of size. So electrophoresis is the process of separation, or it is the laboratory technique for separation of molecule on the basis of their charge. Here you can see this is the image of different charges like positive, minus or negative charge. So we can simply say that electrophoresis is the technique is to carry out the separation or the purification of the molecule or the isolation of the molecule from the mixture. Okay, here you can see a separation of mixture of charge molecule. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट मिक्सचर है चार्जेस का और ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव मॉलिक्यूल या पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव मॉलिक्यूल या नेगेटिव चार्ज, अपन चार्ज सेपरेशन को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें चार्ज सेपरेशन में करेंगे। या साइज आप देख सकते हो, बड़ा वाला, उसके बाद छोटा और उसके बाद बहुत ज़्यादा छोटा, ये एनालाइज हुए और ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे सब पॉजिटिव साइड गए, जहाँ पे नेगेटिव है सब नेगेटिव मॉलिक्यूल्स आए और इस प्रकार हमने वो मॉलिक्यूल्स, एक मिक्सचर था ये मॉलिक्यूल मिक्सचर, वहाँ से हमने सेपरेट किए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाउ सेपरेशन ऑकर्स? फर्स्ट इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि मेनी मॉलिक्यूल्स लाइक अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, DNA, RNA have naturally occurring negative and positive charge on them. अभी अमीनो एसिड्स कुछ 5 टाइप्स के जो है जिसमें हम कहेंगे चार्ज मॉलिक्यूल, 3 जो रहते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल और 2 जो होते हैं वो होते हैं निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर फंक्शनल आर चेन। एंड DNA जो होता है आप सबको पता है, DNA इज अ निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। सो ये मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, अगर आपको मिक्सचर दिया जाए प्रोटीन, DNA, सब न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें से आपको DNA आइसोलेट करना है तो हम कैसे आइसोलेट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। मॉलिक्यूल्स विथ नेगेटिव चार्ज मतलब अनायंस, आपको सबको पता है नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो molecules with a negative charge, that is anions, will be attracted to the positively charged anode, मतलब negatively charged molecule anions will be going to attract to the positively charged anode. That anode is present in the electrophoretic chamber and molecules with the positive charge, that is cations, will be attracted to the negatively charged node, that is cathode. So सेकेंड्स जो स्टेप है जैसे सेपरेशन होगा वो होता है आपका मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज मतलब द पोरस मटेरियल इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन जेल्स, और वो पोरस मटेरियल जो है वो मूव करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज।
अभी जिसका साइज ज़्यादा है उसको उस एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन होने के लिए या मूव होने के लिए साइज ज़्यादा रहने के कारण टाइम जो रहेगा वो ज़्यादा लगेगा मूव होने के लिए, ठीक है। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल रहेगा वो इट कैन मूव फास्टर देन द लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये पोरस मॉलिक्यूल है, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो पोरस मॉलिक्यूल है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ये मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे डाल दिया है, मिक्सचर था, तो उसमें से जो बड़ा वाला है लार्ज मॉलिक्यूल है वो सेपरेट होने के लिए उसको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल जो है ये पोरस है। जो छोटा वाला मॉलिक्यूल रहेगा वो सबसे फास्ट आ जाएगा, जो बड़ा है उसको आने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल का मीनिंग क्या है? जेल आप अगर न्यूट्रिएंट अगर आप बनाते हो फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिकल, सपोज यू आर गोइंग टू प्रिपेयर 100 ml nutrient agar for the isolation of bacteria, so you can visualize that अगर जो रहता है मोल्टन स्टेट में रहता है ऑटोक्लेव होने के बाद, तो उसको सॉलिडिफाई होने के लिए कम टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन वो सॉलिडिफाइड स्टेट में है। लेकिन एगारोस जो है इट इज़ इन द जेल स्टेट, जेल या जो सेमी सॉलिड स्टेट कहेंगे। क्यों चाहिए ऐसे स्टेट? क्योंकि हमें आइसोलेशन करना है। तो जेल्स कैन बी मेड फ्रॉम सब्सटेंसेस सच एज एगारोस और पॉलीएक्रिलामाइड जेल, ठीक है। एगारोस जो होता है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स शुगर चेन फ्रॉम रेड सीवीड, यहाँ पे आप देख सकते हो इससे वो बनता है। इट इज़ कॉमनली यूज इन फूड्स दैट इज आइसक्रीम एंड जेलीज एंड मेनी बायोलॉजिकल मीडियम्स। इट हैज़ लार्ज पोर साइज and good for separating large molecules quickly. Polyacrylamide जो जेल होता है it is a chain of acrylamide molecule. It is often used to make plastic and rubber. ये आपको सबको पता है एक्रिलिक एसिड से जो बनता है पॉलीएक्रिलामाइड, ये मॉलिक्यूल हम प्लास्टिक या रबर बनाने के लिए यूज करते हैं। इट हैज़ स्मॉल पोर साइज एंड ऑल्सो गुड फॉर सेपरेटिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स। एगारोस जेल, agarose gel it is a porous material derived from red seaweed. Agarose is highly purified, मतलब ये agar से भी ज़्यादा purified होता है to remove impurities and charge. It act as a sieve for separating molecules. sieve का मतलब होता है जैसे आप अगर चाळणी, घरात जर तुमच्याकडे चाळणी असेल तर तुम्ही चाळणी का वापरतात? जे काही खडे वगैरे असतील धान्यातले तर ते वरच्यावर राहून जातील आणि तुमचं एक प्युरिफाईड मटेरियल जे आहे ते भेटेल. तसेच एगारोस जे आहे ही एक चाळणी आहे, सेपरेट करते मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज एंड साइज. कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अफेक्ट करता है मॉलिक्यूल्स के माइग्रेशन को. लाइक लो कॉन्सेंट्रेशन अगर रहेगा किसका? एगारोस का, तो लार्ज पोर्स बनेंगे और लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट्स बनेंगे. अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है तो स्मॉलर पोर्स बनेंगे लेकिन बेटर रिजोल्यूशन फॉर स्मॉलर डीएनए. ठीक है, दिस इज द चार्ट फॉर फ्रैगमेंट रिजोल्यूशन. जेल कॉन्सेंट्रेशन इट इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स टू बी सेपरेटेड. अगर 0.5 कॉन्सेंट्रेशन या 0.5% ऑफ एगारोस हम यूज करते हैं फॉर 100 ml तो 30 to 1 kb तक का जो फ्रैगमेंट है डीएनए फ्रैगमेंट, वो फ्रैगमेंट रिजॉल्व हो सकता है. ठीक है, इस प्रकार आगे के भी कुछ परसेंटेज दिए गए. एगारोस जो होता है एट रूम टेम्परेचर इट इज अ 3D सॉलिड मैट्रिक्स और 3 डायमेंशनल सॉलिड मैट्रिक्स. द स्मॉलर द फ्रैगमेंट फर्दर द माइग्रेशन ऑफ मूवमेंट टू द मैट्रिक्स. ओके, दिस इज द इलेक्ट्रोफोरेटिक चेम्बर. स्मॉल मॉलिक्यूल आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा मूव हो रहा है, फास्ट मूव हो रहा है एज कंपेयर टू द लार्ज मॉलिक्यूल. पर्पस क्या है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का? इट इज़ वेरी सिंपल, टू एनालाइज द मॉलिक्यूल्स और टू एनालाइज द मॉलिक्यूलर साइज और टू separate the molecule on the basis of their size. Separation and extraction of molecule, we are going to isolate, we are going to extract the molecule from the mixture
Okay, so for this purpose we are going to use gel electrophoresis or agar or gel electrophoresis. And last one is quantification of molecule. क्वांटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैसे करेंगे? अगर डीएनए का फ्रैगमेंट है, आपको डीएनए का मिक्सचर दिया गया है, उसका अगर क्वांटिफिकेशन करना है, मतलब क्वांटिटी कितना है ये पता करना है, तो हम भी एगर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ कर सकते हैं. वो कैसे, मैं नेक्स्ट अगर इमेज में आपको बताता हूँ कि एक लैडर दिया जाता है 50 किलो बेस पेयर, 50 बेस पेयर, 100 बेस पेयर. इस प्रकार आपके मिक्सचर में कितना डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है ये हम क्वांटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग agar or gel electrophoresis. So till then, if you have any questions regarding to the basic concept of agar or gel electrophoresis, you can ask me in the comment section. In the next lecture, we are going to see actual procedure of agar or gel electrophoresis. Thank you.